السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ کی ذات سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کا ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف ایمان کے ساتھ ساتھ اور تقوی کے ساتھ ساتھ ایمان اور تقوی کو صرف کافی نہیں قرار دیا، بلکہ ایمان اور تقوی کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ سچوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ سچے کون ہیں؟ اللہ والے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، تو وہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان اور تقوی ان دونوں کو کافی نہیں قرار دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سچوں کی صحبت بھی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے شروع میں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت تو متقین کے لیے ہے، لیکن جو لوگ ہدایت پا جائیں، کیا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے؟ شیطان اس کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ متقین کے لیے کیا ضروری ہے؟ سچوں کی صحبت بھی ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ متقی تو ہے، پرہیزگار تو ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف تو اس کے دل میں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کو گمراہ کر دے، بھٹکا دے، راستہ سے اہدنا الصراط المستقیم سے اس کو بھٹکا دے، بہکا دے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور آپ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کس نے نکالا؟ شیطان نے نکالا نا۔ شیطان نے نکالا کن کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے۔ تو ہماری دشمنی شیطان سے آج سے نہیں ہے، ہمارا دشمن شیطان یہ آج اور کل سے نہیں ہے، بلکہ ابتدا سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا شیطان نے، اور آج بھی شیطان نہیں چاہتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کرے، نیک کام کرے، اور نیک کام کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ اگر ہم تقوی اختیار بھی کرتے ہیں تو شیطان چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے سے پھیر دیں، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، اس کو گمراہ کر دیں۔ چنانچہ اسی لیے شیطان ہمیشہ کوشش کرتے رہتا ہے اللہ کے بندوں کو بھٹکانے کا۔ اسی لیے صرف تقوی کافی نہیں ہے دوستو، صرف ایمان کافی نہیں ہے، تقوی کے ساتھ ساتھ سچوں کی صحبت بھی ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس تقوی ہے، اگر ہمارے پاس تقوی اور ایمان کے ساتھ ساتھ سچوں کی صحبت نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی صحبت نہیں ہے، ہم اللہ کے ولیوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ کبھی نہ کبھی شیطان ہم کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ کی ذات سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ یہ سچے، یہ اللہ کے ولی ہی ہے کہ
जब हम इनकी सोहबत में बैठेंगे तो ये हमको बताएंगे कि हमें शैतान कैसे गुमराह नहीं कर पाएगा। और चूँकि हमारी आंखों में वो ताकत नहीं होती है कि हम शैतान का मुशाहिदा कर सके, हम शैतान को देख सके, उनके हरबा किस तरीके से, शैतान अपना हरबा किस तरीके से आजमाता है, अपनी जाल कैसे फेंकता है बंदों पर, हमको पता नहीं है। लेकिन अल्लाह के वलियों को पता है, क्योंकि वो इस मरहले से गुजर चुका होता है। इसीलिए हमें उनकी सोहबत इख्तियार करने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो हमें चाहिए कि हम सच्चों की सोहबत इख्तियार करें। आप देखें, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आज हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर तो जगह जगह लोग जलसा मुनक़िद करते हैं, प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत कम नज़र आते हैं। वजह यह है कि किन किन चीज़ों पर गुफ्तगू होनी चाहिए और जो ज़रूरी चीज़ें हैं आवाम तक नहीं पहुंचाई जा रही हैं। सिर्फ करामात को बयान कर देते हैं और फिर बस जलसा ख़त्म। दोस्तों, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात, उनके अखलाक और सीरत को आम करने की ज़रूरत है, सिर्फ उनके करामतों को नहीं। तो आइए हम आज जानते हैं कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात कैसी ज़ात थी और उनकी ज़िंदगी से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है। आप देखें, बचपन का ज़माना है, आप ख़ुद फरमाते हैं, आपसे किसी ने दरियाफ्त किया, हुजूर आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ, आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। चुनांचे आप फरमाते हैं कि बचपन में मैं जब मकतब जाया करता था, मकतब जाने के लिए निकलता था और मकतब के करीब पहुंचता तो गैब से आवाज़ आती थी, एक आवाज़ आती थी कि अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो, अल्लाह का वली आ गया है। चुनांचे मुझे बचपन ही में पता चल गया कि मैं अल्लाह का बहुत बड़ा वली हूँ। इसके बावजूद आप देखें दोस्तों, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बचपन ही में अपनी विलायत का इल्म हो चुका था, तो फिर आपको इल्म हासिल करने की और क्या ज़रूरत थी। जो अल्लाह का वली बन जाता है उसको इल्म हासिल करने की हाजत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। इसके बावजूद आप 18 साल की उम्र में अपनी माँ से इजाज़त लेते हैं ताकि जाकर के बगदाद में आला तालीम हासिल कर सके। यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा पैगाम ये मिलता है, जो खानका के सज्जादा हैं, जो खानका के पीरजादगान हैं, उन लोगों को यहाँ से सबक सीखना चाहिए कि सिर्फ सज्जादा बन करके मसनद पर बैठ जाना, तकिया लगा करके बैठ जाना, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि सबसे पहले इल्म से ख़ुद को आरास्ता और पैरास्ता करना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारे पास इल्म नहीं होगा शैतान हमको गुमराह कर देगा। जब तक इल्म हमारे पास नहीं होगा तब तक तकवा भी सही तरीके से, तकवा के मेयार को हम समझ ही नहीं पाएंगे। इल्म किस लिए ज़रूरी है? तकवा के लिए ज़रूरी है और शैतान के हरबों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम इल्म को अच्छी तरीके से सीखें। तो बग़ैर इल्म के कुछ नहीं हो सकता है। चुनांचे हमारी तालीम के लिए, हमें ये मैसेज देने के लिए सैयदना शेख बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। चुनांचे आप 18 साल की उम्र में अपनी वालिदा माजिदा से इजाज़त तलब करते हैं बगदाद जाने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में बगदाद में बहुत आला तालीम हुआ करती थी, वहाँ बड़े बड़े माहिर इल्म फ़न रहा करते थे। चुनांचे आप अपनी वालिदा से इजाज़त तलब करते हैं। आपके वालिद तो पहले ही इंतकाल हो चुके थे और आपके वालिद आपकी वालिदा को 80 दिनार दे कर के गए थे। उनमें से 40 दिनार आपकी वालिदा ने आपको दे दिया ताकि आप जाकर के वहाँ तालीम हासिल करें, तो तालीम हासिल करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और 40 दिनार आपकी गुदड़ी में बगल में सिल दिया आपकी वालिदा ने, और 40 दिनार आपके भाई अहमद के लिए रख दिया। आपका एक छोटा भाई था, अहमद उनका नाम था। अहमद के लिए क्या किया? वो 40 दिनार उनकी वालिदा ने रख दी। चुनांचे आप एक काफ़िला के साथ रवाना हो जाते हैं। आज का ज़माना क्या है? आज के डेट में बड़ी बड़ी तेज़ रफ्तार सवारियाँ हैं। आदमी मिनटों में, घंटों में कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, लेकिन उस ज़माने में सिर्फ घोड़ा या पैदल आदमी सवारी किया करता था, या फिर ऊँट, घोड़े, इस तरह की चीज़ों में सवार होकर के जाया करते थे। सैयदना शेख बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी काफ़िला के साथ हो लेते हैं।
चुनांचे एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे बहुत सुनसान और जंगल हुआ करता है, तो वहाँ पे डाकुओं का हमला हो जाता है काफिला पर। चुनांचे सारे डाकू आते हैं और लूट मार करना शुरू कर देते हैं। और सैयदना शेख बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी से भी एक डाकू ने दरियाफ्त किया कि तुम्हारे पास कुछ है बच्चा? तो आपने जवाब दिया कि जी हाँ, मेरे पास 40 दिनार है। तो उस डाकू को लगा कि शायद के मजाक कर रहा होगा, वो चला गया। इसी तरीके से और लोगों ने भी, जितने डाकू थे एक के बाद दीगर, सब ने दरियाफ्त किया, तो आपने सबको एक ही जवाब दिया, आपने झूठ नहीं बोला। चुनांचे ये मामला जब डाकुओं के सरदार तक पहुंचा, सरगना तक पहुंचा, तो उसने बुलवाया कि बुलाओ उस बच्चे को। कौन कहता है कि मेरे पास 40 दिनार है। जब बुलवाया गया तो डाकू ने कहा, वो लोग अपना माल वहाँ पर तकसीम कर रहे थे कि चलो अब हम लोगों ने तो सारे माल को लूट लिया, अब अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। चुनांचे वहाँ पर सैयदना शेख बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी को बुलवाया। बुलवाने के बाद कहा, ए बच्चा, क्या तुम्हारे पास 40 दिनार है? तुम कह रहे हो। तो आपने फरमाया, जी हाँ, मेरी अम्मी ने मेरे बगल में 40 दिनार को सिल दिया है और मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा सकता हूँ। चुनांचे जब खोला गया तो वाकई 40 दिनार निकला। हम लोगों ने ताज्जुब किया कि अगर ये बच्चा झूठ बोलता तो इसके 40 दिनार बच जाते। सच बोल दिया। चुनांचे जो सरगना था, डाकुओं का सरदार था, उसने दरियाफ्त किया कि ऐ लड़का, तुम झूठ अगर बोलते तो तुम्हारा 40 दिनार बच जाता, क्या वजह है तुम सच बोल दिए? तो क्या ही प्यारा जवाब देते हैं, तारीखी जुमला है। आप फरमाते हैं कि मेरी वालिदा जब मुझको रुखसत कर रही थी तो उस वक्त मुझे एक नसीहत की थी। वो क्या? कि ऐ बेटा, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, सिचुएशन चाहे कैसा ही क्यों ना आ जाए, पोजीशन चाहे कोई भी हो, कभी भी झूठ मत बोलना, झूठ का सहारा मत लेना। चुनांचे मैं अपनी वालिदा से वादा करके निकला था, मैं अपनी वालिदा से वादा किया हुआ था, चुनांचे उस वादा को तोड़ नहीं सकता था, इसीलिए मैं सारी बातें आप लोगों को सच बोल दिया। अपनी वालिदा का वादा मुझे अभी भी याद है। चुनांचे डाकुओं का जो सरदार था, उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि तुम सिर्फ अपनी वालिदा से वादा किए हो, उस वादा को पूरा करने के लिए तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। और हम लोग, अल्लाह ताला ने हम लोगों को किस लिए पैदा किया है? इतने दिनों से हम लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला के लिए हम लोग कुछ नहीं अब तक किए हैं। अल्लाह ने जिस लिए हमें पैदा किया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह के वादे को हम तोड़ रहे हैं। अल्लाह ने हमको जिस लिए पैदा किया है, हम उस काम को नहीं कर रहे हैं। चुनांचे उसी वक्त वो लोग तौबा करते हैं और आपके हाथ पर कलमा पढ़ते हैं, ईमान लाते हैं और आपके हाथ पर बैत हो जाते हैं, मुरीद बन जाते हैं आपके। आपसे दरियाफ्त किया गया कि सबसे पहले मुरीद आपके कौन है, आपके हाथ पर सबसे पहले तौबा किसने किया? तो आप फरमाते हैं कि वो डाकुओं के काफिले ने, जिसने सब लोगों का माल लूटा था, लेकिन मेरे हाथ पर उन लोगों ने मेरे सच बोलने की वजह से ईमान लाया। दोस्तों, सच में बहुत ताकत होती है। आप देखें, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में अभी तक नबूवत का ऐलान नहीं किए हैं। नबूवत का ऐलान तो आपने 40 साल की उम्र में की है, लेकिन नबूवत के ऐलान से कबल आपको वहाँ के लोगों ने अमीन और सादिक के लक़ब से याद किया है। आप अपनी अमानतें आपके पास ले जा करके रखा करते थे, अपना माल और मता आपके पास अमानत के तौर पर रखा करते थे। क्यों? क्योंकि आप अमीन और सादिक थे। यानी अमीन मतलब अमानतदार, किसी की अमानत में खयानत करने वाले नहीं, उसके साथ साथ सच बोलने वाले, कभी झूठ बोलने वाले नहीं। तो ये सबक तो हमें आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलता है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा सच बोलने की तरगीब दिलाई, हमेशा सच बोलने की ताकीद की और हमेशा अमानत की पासदारी की। चुनांचे आप देखें, सैयदना शेख बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी ने भी कभी भी अपनी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। आपके एक मुरीद ने आपसे दरियाफ्त किया कि हुजूर, आपकी जो खानका है, आपकी जो फ़िक्र है, इसकी बुनियाद किस पर है? तो आप कहते हैं कि इसकी बुनियाद सच पर है। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। लेकिन हमारे मुआशरा को क्या हो गया है, हमारे समाज को आज क्या हो गया है कि हर तरह से हम झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने को हम तो फैशन बना लिए हैं। झूठ इतनी माहिरी के साथ बोलते हैं, झूठ लगता है
کہ ہمیں بولنے کی تاکید آئی ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے، جبکہ جھوٹ کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے۔ جھوٹوں کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ راوی جو حدیث روایت کرتے ہیں، اگر ان کو جھوٹوں کے بارے میں پتہ چل جائے کہ فلاں شخص جھوٹا ہے، تو اس سے کوئی شخص روایت نہیں کرتے ہیں حدیث۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے دوستو جو ہزار بیماریوں کو پیدا کرتی ہے، ہزار برائیوں کو پیدا کرتی ہے، اور سچ ایک ایسی اچھائی ہے کہ ہزاروں خرابیوں کو اچھا بنا دیتی ہے۔ سچ ہمیشہ انسان کو بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر ہزاروں برائیاں جو نہیں رہتی ہیں وہ بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص سچ بولتا ہے، سچ بولنے کا عادی بن جاتا ہے، تو ہزاروں برائی اس کے اندر یوں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ سچ کی بڑی اہمیت ہے۔ جو انسان سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور آپ قرآن پاک کی آیت میں بھی غور کریں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچوں کا ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہتا کہ اللہ کی ذات سے ڈرو، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ اور ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی ہمیں پتہ چلا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا نا تو یہاں اللہ کے ولیوں کا ساتھ ہونے کا اعلان کرتا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیتا، سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم نہیں دیتا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سچ بولنے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ سچ ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں جب آپ بغداد پہنچے، وہاں جا کر کے تعلیم حاصل کرنا شروع کیے، تو کچھ ہی سال میں آپ کے علم کا شہرہ چاروں جانب پھیل گیا۔ آپ اتنے بڑے عالم فاضل بن گئے، آپ کے علم کا ڈنکا چاروں طرف بجنے لگا۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے جو بڑے ماہر تھے۔ چنانچہ اسی زمانے میں وہاں ایک اللہ کے بہت بڑے ولی، برگزیدہ اللہ کا بہت بڑا برگزیدہ بندہ تھا، جن کی بارگاہ میں لوگ جاتے تھے فیض حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی ارادہ کیا کہ ان کی بارگاہ میں جا کر کے برکت حاصل کی جائے، ان سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ اور آپ کے ساتھ اور دو لوگ تھے، ان لوگوں کو اپنے علم پر بہت ناز تھا، بہت غرور اور تکبر تھا۔ یاد رکھیں، علم کا غرور اور تکبر انسان کو ڈبا دیتا ہے۔ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ تکبر نے، غرور نے۔ اگر وہ تکبر نہیں کرتا تو برباد نہیں ہوتا۔ چنانچہ علم کا غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیت سے جا رہے تھے کہ اس بزرگ کی بارگاہ میں جا کر کے کیا کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن ان دونوں نے کیا کہا کہ ہم تو ان سے جا کر کے ایسے ایسے سوال کہیں گے کہ وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ ایک نے کہا ہاں ہمیں بھی سوال کرنا ہے۔ تو دیکھیں یہ لوگ کس نیت سے گئے۔ تینوں وہاں جا کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ جب بزرگ ان لوگوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں نا، وہ دونوں جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے ایسے سوال کریں گے کہ جواب نہیں دے سکتے۔ چنانچہ کہا کہ اے فلاں، تمہارا سوال یہ ہے، تمہارا جواب یہ ہے۔ بولنے سے پہلے ہی آپ نے ان کے سوال اور ان کے جواب سب کو آپ نے بیان کر دیا۔ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ہم نے تو سوال بھی نہیں بولا تھا اور جواب بھی نہیں ہم نے بولا تھا، یہ تو ہم ہی لوگوں کے درمیان بات ہوئی تھی، ان کو کیسے معلوم چل گیا؟ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا پاور دیتا ہے، اتنا پوزیشن دیتا ہے کہ ان کو دلوں کی بات بھی معلوم ہو جاتی ہے، دلوں کا راز بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے ان لوگوں کے بارے میں آپ نے بتا دیا۔ ہمیں اس بات کا بہت زیادہ احتیاط رکھنی چاہیے، اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب جائیں نا تو اپنے دل کو سنبھال کر کے جائیں، اور اللہ کے اور علماء کی بارگاہ میں جب جائیں تو اپنی زبان کو سنبھال کر کے بات کریں، کیونکہ علماء دل تو نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، لیکن زبان سے جملہ ضرور سنتے ہیں۔ اگر کوئی آپ ایسا نازیبا جملہ استعمال کریں گے تو ان کو تکلیف پہنچے گی، اور ان کو تکلیف پہنچنا یہ نائب رسول ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کے سامنے ہمیں زبان سنبھال کر کے بات کرنی چاہیے۔ اپنے استاذ ہوں، اساتذہ ہوں، اپنے
अकाबिर हों, उनसे हमें इज़्ज़त से बात करनी चाहिए, इज़्ज़त से पेश आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उनसे इस तरह से कलाम करें कि उनके दिल को तकलीफ़ पहुँचे, ठेस पहुँचे। और अगर किसी वली की बारगाह में जा रहे हैं तो उनका इम्तिहान लेने के लिए नहीं, उनकी आजमाइश के लिए ना जाएं, बल्कि उनकी बारगाह में इस्तिफ़ादा के लिए जाएं, फ़ायदा उठाने के लिए जाएं, उनसे कुछ सीखने को जाएं। उनकी बारगाह में इसलिए जाएं ताकि अल्लाह की याद आए, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो। इसलिए ना जाए कि हम उनकी आजमाइश करें, इम्तिहान लें। चुनांचे उसके बाद देखें, फिर सैयदना शेख बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ जब बुज़ुर्ग देखते हैं, देखने के बाद मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये बंदा, एक ऐसा ज़माना आएगा कि इनकी शोहरत पूरी दुनिया में होगी, सारे लोग इनको चाहेंगे और ये ऐलान करेगा कि मेरा ये कदम सारे वलियों के गर्दनों पर है और सारे वली इनके लिए गर्दन अपनी झुका देंगे। तो एक कहावत हमारे दरमियान बहुत मशहूर है, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। जो बाअदब होता है अल्लाह ताला हमेशा उसके लिए कामयाबी को मुकद्दर बना देता है, और जो बदकिस्मत होता है, जो बदखुल्क होता है, बदमिजाज होता है, बदतमीज़ होता है, हमेशा कामयाबी मिलने के बावजूद वो नाकाम हो जाता है। और हकीकत में असल कामयाबी तो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना ही कामयाबी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अल्लाह वालों को और उलमा को तकलीफ़ नहीं देना है। अगर इनको तकलीफ़ देंगे तो फिर याद रखें कि हमारी आखिरत बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो जाएगी। चुनांचे आप देखें, सैयदना शेख बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी इल्म हासिल करते हैं। जब तक आप इल्म हासिल करते हैं बड़ी मेहनत और लगन से, और इल्म हासिल करते हैं तो सिर्फ एक इल्म नहीं, तफसीर में आप देख लें, तफसीर में आप जो है कुरान की बारीकियों के बारे में इल्म हासिल करते हैं। ऐसी आप तफसीर बयान करते थे कि आपके मजलिस में बैठने वाले लोग शशदर और हैरान रह जाते थे कि ऐसी बारीकी बातें तो हमको मालूम ही नहीं। बड़े बड़े उलमा किराम आपकी बारगाह में आते थे और आपकी तफसीर और आपके दर्स, आपके बोलने में, आपकी ज़बान में जो तासीर थी, लोग सुन कर के अशश करते थे। चुनांचे आप हर इल्म में, सारे उलूम व फ़नून में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर ली। उसके बाद यहीं तक महदूद नहीं, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, इल्म हासिल करने के बाद आप बयाबान और जंगलों में अल्लाह ताला की याद में, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होने के लिए जंगलों में फिरने लगे। तो हमें क्या पता चलता है सबसे पहले हमें इल्म हासिल करना चाहिए, और इल्म हासिल करने के बाद हमें अल्लाह ताला की इबादत में लगना चाहिए, उसको राज़ी करने के लिए लगना चाहिए, और फिर किसी मुर्शिद की भी तलाश होनी चाहिए, मुर्शिद कामिल की भी तलाश होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ इल्म हासिल कर लें और इल्म ही को काफ़ी समझ लें, बल्कि इल्म के साथ साथ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए उसकी इबादत भी ज़रूरी है, और एक मुर्शिद कामिल की भी ज़रूरत है जो आपकी रहनुमाई करे। चुनांचे आप देखिए, इल्म की बड़ी फजीलत है। हदीस पाक में आता है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इसी तरह से आया है, उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन। तुम मुल्क चीन चले जाओ, तुम इल्म दीन हासिल करो, अगरचे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े। मुल्क चीन उस ज़माने में कितनी दूरी थी, कितना फासला था, इसके बावजूद आपने क्या कहा, इल्म दीन हासिल करो, चाहे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े। यानी कितनी ही मसाफ़तों को तय करके तुम्हें कितनी ही दूर जाना पड़े, इसके बावजूद तुम क्या करो, इल्म दीन हासिल करो। तो इल्म की बड़ी अहमियत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सराहत के साथ फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। क्या जानने वाले और नहीं जानने वाले बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। जो अल्लाह के वली होते हैं सबसे पहले वो आलिम होते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला उसको विलायत अता करता है। कोई जाहिल अल्लाह का वली बन ही नहीं सकता है। तो इल्म लाजिम और कंपलसरी है। इल्म की निस्बत डायरेक्ट अल्लाह ताला की ज़ात के साथ है। अल्लाह ताला अलीम है, अगर कोई इल्म हासिल करता है तो उसकी निस्बत अल्लाह ताला के ज़ात के साथ हो जाती है, और जिसकी निस्बत अल्लाह ताला के ज़ात के साथ गहरी हो जाए वही शख्स तो कामयाब है। चुनांचे इल्म की बड़ी फजीलत आई है।
कुरान में, हदीस में। और जब तालिब इल्म अपने घर से निकलता है इल्म हासिल करने के गर्ज से, तो फरिश्ते उसके नीचे पर बिछा देते हैं, अपने परों को फरिश्ते उसके नीचे बिछा देते हैं। जो तालिब इल्म अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने घर से इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, तो उसके पर, उसके नीचे फरिश्ते, उसके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। मछलियाँ पानी से उनके लिए दुआएं करती हैं, चूटियाँ बिलों से उनके लिए मगफिरत की दुआएं करती हैं। कायनात के ज़र्रा ज़र्रा उस बंदे के लिए जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, उसके लिए मगफिरत की दुआएं करता है। तो क्या ही खुश नसीब है वो लोग जो इल्म हासिल करने के कोशिश में लगा रहता है। और हमारे मुआशरा में देखें आप, इल्म के मामले में लोग बहुत ज़्यादा पीछे। इल्म की ताकीद सबसे ज़्यादा हमारे कुरान और अहादीस में आई है, लेकिन मुसलमान ही सबसे ज़्यादा पीछे हैं। आप कुरान की आयत देखें, इक़रा, पढ़ो अपने रब के नाम से, तो इक़रा का लफ्ज़ आया कि पढ़ो, और सबसे पहली वही यही नाजिल हुई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे पहली वही जो नाजिल हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो वही के ताल्लुक़ से, वो पढ़ने के ताल्लुक़ से, तालीम के ताल्लुक़ से, एजुकेशन के ताल्लुक़ से। लेकिन हमारे मुआशरा ही में आप देखें कि सबसे पीछे मुसलमान हैं, सबसे पीछे मुसलमान हैं। लेकिन खाने के मामले में, घर बनवाने के मामले में सबसे आगे हैं। घर बनवाने की बात आती है तो प्लॉट खरीदते हैं, घर बनवाते हैं, आलीशान शानदार घर, और दस्तरखान तो इस तरह से सजाते हैं कि वक्त का बादशाह देख ले तो वो भी शर्मा जाए। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम खाने के मामले में, घर बनाने के मामले में बहुत आगे हैं, लेकिन जब पढ़ाई की बात आ जाती है, तालीम की बात आ जाती है, तो हम अपनी बगलें झाँकने लगते हैं, हम अपने जेबें झाँकने लगते हैं और शिकायतें करते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास तो रुपए नहीं है, हम कैसे अपने बच्चों की तालीम आला से आला कराएं। याद रखें, आप खुद भूखा रहें, 2 वक्त के बजाय 1 वक्त की रोटी खा लें, लेकिन अपने बच्चों की तालीम आप आला से आला दिलाएं। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों की तालीम आला से आला कराते हैं तो यही बच्चे आगे चल कर के फ्यूचर बनेंगे, मुस्तकबिल फ्यूचर इन्हीं से आगे चलेगी। और जब ये तालीम हासिल करेंगे तो हमारे मुआशरा में एक तालीम का फ़िज़ा हमवार होगा, और उससे मुआशरा में एक इनकलाब बर्पा होगा। याद रखें, जाहिलों ने कभी भी दुनिया में इनकलाब बर्पा नहीं कर पाया। अगर कोई इनकलाब बर्पा किया है ज़माने में तो आलिम ने किया है, वो एजुकेटेड लोगों ने किया है। जाहिलों ने कभी कोई इनकलाब बर्पा नहीं कर पाया। सिर्फ जाहिल क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। अगर ज़माने में कुछ करना है तो तालीम पर बहुत ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी, तालीम पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी, तभी हम जा कर के ज़माने में कुछ कर सकते हैं। और यही चीज़ हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात से सीखने को मिलती है। यही हमारे औलिया किराम अकाबिरीन के ज़िंदगी से सीखने को मिलती है, उनकी सीरत से सीखने को मिलती है। लेकिन हम मुसलमान जलसा और कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, लेकिन तालीम के नाम पर आज कुछ भी नहीं करते हैं। हमारा कितने कॉन्वेंट है, कितने यूनिवर्सिटी है, कितने स्कूल हमने कायम किए, कितने इदारे कायम किए। बहुत ही महदूद पैमाने पर हमने इल्म के लिए, इल्म के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ किया है, जबकि अपनी ज़ात के लिए बहुत कुछ करते हैं और करते रहेंगे, और अपनी ज़ात ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इल्म के लिए और मुआशरा के लिए हमने कुछ किया ही नहीं है, जबकि इल्म की बड़ी फजीलत है। जिसके पास इल्म है तो वही ज़माने में कामयाब होता है। आप देखें, अगर अल्लाह ताला की आप इबादत करना चाहेंगे, नमाज अदा करना चाहेंगे, अगर आपके पास इल्म ना हो तो सही तरीके से नमाज भी नहीं अदा कर सकते हो। और आप याद रखें कि आप अगर बग़ैर इल्म के नमाज अदा किए तो वो नमाज कबूल भी नहीं होगी, बल्कि हश्र के मैदान में गलीज़ कपड़े में लपेट करके वो तुम्हारे मुँह पर मार दिया जाएगा। इल्म ज़रूरी है दोस्तों, इल्म के बगैर कुछ हासिल ही नहीं है। इल्म सबसे पहला कदम है। इल्म अगर आपके पास नहीं है तो ज़माने में कभी भी आप कोई काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास इल्म है तो वो इल्म ही आपको रास्ता दिखाएगा कि आगे आपको क्या करना है। तो हमारे बुजुर्गान दीन ने हमें इल्म पर बड़ी तवज्जो दिलाई है, लेकिन हम ही इसके मामले में पीछे हैं। तो इल्म हासिल करने के बाद फिर एक मुर्शिद की तलाश भी ज़रूरी है। और मुर्शिद कैसा हो? मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, सौम व सलात का पाबंद हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी पीर की तलाश में तो लग गए, लेकिन पीर आपने कैसा तलाश किया?
مالدار ہے، پیسہ والا ہے، سید ہے، سب کچھ تو ہے، لیکن ان کے اندر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ پیر بننے کے لائق نہیں ہے۔ پیر کا مطلب ہی ہوتا ہے متقی اور پرہیزگار۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کن کو پیر بنایا؟ ابو سعید مخزومی المبارک کو۔ وہ کوئی سید نہیں تھے، لیکن اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ تقوی اور پرہیزگاری آپ کے اندر بہت زیادہ تھی، آپ نے ان کو اپنا پیر و مرشد بنایا۔ تو صرف علم اور تقوی کافی نہیں ہے، بلکہ علم اور تقوی کے ساتھ ساتھ کسی مرشد کامل کے دامن کو بھی تھامنا ضروری ہے، تب شیطان آپ کو گمراہ نہیں کر پائے گا، ورنہ تو گمراہ ہونا ہی ہونا ہے۔ بغیر پیر کے شیطان، بغیر مرشد کے شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک مرشد کی بھی تلاش بہت ضروری ہے، جو مرشد کامل ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ذات، ان کی صفات پر کامل یقین رکھتا ہو، جو صوم و صلات کا پابند ہو، جو تقوی جیسی عظیم صفت سے متصف ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہی تک محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت۔ پھر آپ دیکھیں سیدنا شیخ بغداد عبد القادر جیلانی، آپ کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ آپ نے فاقہ کشی کس طریقے سے کی۔ 20 دن تک آپ بغیر کھائے پیے رہتے تھے۔ جب آپ کو بہت زیادہ بھوک لگتی تھی تو آپ زمین پر لیٹ جاتے تھے، ان مع العسر یسرا والی آیت تلاوت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں یہ آیت تلاوت کرتا تو میری ساری کلفتیں دور ہو جاتی، میری بھوک مٹ جاتی، ساری کھانے پینے کی خواہش ختم ہو جاتی۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت نے دریائے دجلہ کے جانب لے کر کے گیا۔ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے بہت سارے اولیاء، کوئی لنگڑے ہیں، کوئی لولے ہیں، کوئی اپاہج ہے، وہ لوگ جو دریا میں سبزی یا پھر پتے گرے ہوئے ہیں وہی سب اٹھا اٹھا کر کے کھا کے اپنی بھوک کو مٹا رہے ہیں۔ آپ بھی اسی لیے آئے تھے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ یہ اپاہج لوگ، یہ لاچار اور بے بس لوگ یہاں اس طریقے سے کھا کر کے اپنی بھوک کو مٹا رہے ہیں تو آپ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ان لوگوں کے لقمے اور نوالے کو اپنے منہ میں لو، چنانچہ آپ واپس آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا نہیں کیا، بڑی مصیبتیں جھیلی، بڑی کٹھنائیوں کا سامنا کیا، کتنے کتنے دن فاقہ کشی کی زندگی آپ نے گزاری، تب جا کر کے آپ عظیم ولی کے نام سے مشہور ہو۔ آپ تو ولی بچپن ہی سے آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی ریاضات، اتنی مجاہدات، اتنی تکلیفیں برداشت کرنا کس لیے؟ ہماری تعلیم کے لیے کہ ولی بننے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولی بنا دیا۔ ولی بننے کے لیے صبر بھی ہونا چاہیے، استقامت بھی ہونا چاہیے۔ ایک ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، صبر کو اختیار کرتے ہیں، تبھی جا کر کے وہ اللہ کا بہت بڑا ولی، اللہ کا بہت بڑا برگزیدہ بندہ بن پاتا ہے، ورنہ تو بہت مشکل ہے۔ آپ کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، بڑی بڑی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈالی، ان ساری آزمائشوں کو عبور کر کے، ان ساری آزمائشوں کو پار کر کے آپ نے یہ دکھا دیا کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ سیدنا شیخ بغداد عبد القادر جیلانی کے سامنے ایک نور ظاہر ہوا، ایک روشن نور بادل، اور وہ آ کر کے ڈائریکٹ آپ سے کہا کہ اے عبد القادر، اب تم کو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، تم نے اتنی میری عبادت کی ہے، اتنی میری ریاضت کی ہے، اتنا میرے لیے تقوی اختیار کیا ہے کہ اب تمہیں نماز، صوم و صلات کی ضرورت نہیں ہے، اب تم آزاد ہو۔ تو فوراً آپ نے کیا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ شیطان ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں، پوری زندگی، پوری رات آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں نوافل پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں ورم پڑ جاتا تھا، آپ کے پیر پھول جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، آپ اتنا کیوں جگتے ہیں، آپ کا پیر پھول جاتا ہے؟ تو آپ فرماتے اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو نبی ہیں،
फिर भी अल्लाह ताला ने उन पर से नमाज को माफ़ नहीं किया, तो एक वली पर कैसे अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। चुनांचे शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह का पनाह मांगता हूँ। जैसे ही आप ये जुमला फरमाते हैं, अल्लाह की पनाह मांगते हैं, तो वो भागने लगता है शैतान और कहता है कि ए अब्दुल कादिर, तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया, तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि ए शैतान, जाते जाते फिर मुझको गुमराह कर रहा है, मुझको मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझको मेरे अल्लाह के करम ने बचा लिया, मुझको मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझको मेरे अल्लाह के करम ने बचा लिया। चुनांचे आप देखें, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिर्फ हम नाम सुनते हैं, उनकी करामतों को सुनते हैं, उनकी अखलाक, उनकी सीरत को हम नहीं सुनते। आप देखें, आप इल्म हासिल करने के बाद, रियाज़ात और मुजाहिदा में लगने के बाद सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहे, खिदमत खल्क में लग गए, यानी लोगों की खिदमत करने में। आपसे किसी ने दरियाफ्त किया कि सबसे अहम इबादत कौन सी है, तो आपने कहा कि सबसे अहम इबादत मेरे नज़दीक लोगों को खाना खिलाना है। अगर अल्लाह ताला मुझे सिर्फ हुक्म दे कि तुम पूरी ज़िंदगी लोगों को खाना खिलाने ही में गुजार दो, तो मैं सिर्फ लोगों को खाना ही खिला करके अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। कि खाना खिलाने में कितना बड़ा सवाब है लोगों को, यानी खिदमत खल्क का एक मैसेज हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी दे रहे हैं कि मखलूक की खिदमत होनी चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि अपना फ़ायदा, बल्कि लोगों के फ़ायदे के लिए हमको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। आप कैंडल जानते हैं, मोमबत्ती क्या करता है, अपनी वजूद को जला करके, अपनी वजूद को पिघला करके दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, दूसरों को रोशनी पहुंचाते हैं। और इसीलिए अल्लाह ताला ने हम लोगों को पैदा किया है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं, ना कि तकलीफ़ पहुंचाएं। आज हमारा हाल ये है कि हम दूसरों को तकलीफ़ तो पहुंचाते हैं, लेकिन फ़ायदा पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते हैं। हालांकि हदीस पाक में आया है, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। लेकिन हमारा हाल क्या है कि हाथ और ज़बान से, हमारा आज हाथ और ज़बान से कोई महफूज नहीं है। हम उल्टी सीधी बातें लोगों को कहेंगे, गालियाँ देंगे, झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, चुगलखोरी करेंगे, लेकिन किसी की अच्छाई के बारे में कभी तबसरा नहीं करेंगे। हम दूसरों को हाथ से अपने तकलीफ़ तो पहुंचाएंगे, लेकिन कभी भी अपने हाथ से भलाई नहीं पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, जिनकी ज़िंदगी इस तरह से गुजरती हो, तो अल्लाह ताला उससे कैसे राज़ी हो सकता है? वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा कैसे बन सकता है? वो अल्लाह का वली कैसे बन सकता है? वो अल्लाह का दोस्त कैसे बन सकता है? हरगिज़ नहीं बन सकता है। एक अल्लाह के वली के लिए, एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों पर अमल करे, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करे, औलिया किराम की ज़िंदगी पर अमल करे, तब जा कर के वो एक अल्लाह का अच्छा बंदा बन सकता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इबादुर रहमान, रहमान के बंदे कौन हैं? इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरमी के साथ चलते हैं, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ चलते हैं। ये नहीं कि तकब्बुर के साथ चलते हैं, सीना तान करके, दिखा करके कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। याद रखो, अल्लाह ताला तकब्बुर को पसंद नहीं करता है। शैतान को क्यों मरदूद कर दिया अल्लाह ताला ने? सिर्फ उसकी तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से। इसीलिए तकब्बुर करना जायज़ नहीं। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह का बंदा कौन है? जो नरमी के साथ चलते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और रहमान के बंदे कौन हैं? जो अपनी रातें सजदे और क़याम में गुजारते हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं। रहमान का बंदा वो है जो नरमी के साथ चलते हैं और अपनी रातों को अपने सजदे और क़याम में गुजारते हैं, सिर्फ लहो और लहब में नहीं गुजारते हैं। तो हमें चाहिए कि हम पहले अल्लाह का बंदा बने, हम एक अच्छा इंसान बने, हमारे अंदर इंसानियत हो, हमारे अंदर मोरालिटी हो, अखलाक हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक है, किरदार है, वो हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हमारे अंदर अखलाक और किरदार नहीं है, अखलाक और किरदार का फुकदान है, तो याद रखें कि हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। कामयाब कौन है? इनका अखलाक अच्छा है। आप देखें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जन्नत में मेरे करीब सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जिनका अखलाक सबसे अच्छा हो। जिनका अखलाक सबसे अच्छा होगा, ऐसे लोगों के बारे में हुजूर ने फरमाया कि वो लोग सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। और जिनका अखलाक सबसे अच्छा नहीं होगा,
वो जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि बहुत सारी इबादतें भी ऐसे बंदों की कबूल नहीं होगी जिनके अखलाक अच्छे नहीं होंगे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैं अखलाक का तकमील के लिए आया, मैं अखलाक की तकमील के लिए आया। अखलाकी एतबार से जो जो कमियां थी मैं उनको पूरा करने के लिए मुझे अल्लाह ताला ने भेजा, मुझे मबूस किया। उतम्मिमा मकारिमल अखलाक क़द बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मेरी बेअसत इसलिए हुई कि मैं अखलाक की तकमील करूं, अखलाक को पाए तकमील तक पहुंचाऊं। आप देखें आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी को देखें कि वहाँ के लोगों ने आपको कैसी कैसी तकलीफ़ें दी, किस तरीके से आपको इज़ाएँ पहुँचाई, तकलीफ़ें दी। इसके बावजूद आपने उन लोगों से ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं कहा कि उन लोगों को ख़राब लगता, बल्कि आपने सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। और यही चीज़ें बुजुर्गान दीन के अंदर है। आज हम जलसे जुलूस तो करते हैं लेकिन उनकी सीरत को बिल्कुल नहीं देखते। आप देखें सैयदना शेख बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी एक मरतबा मजमा आम में बैठे रहते हैं, लोगों को वाज़ो नसीहत करते हैं। शुरू में तो आपकी मजलिस में ज़्यादा लोग नहीं आते थे, 5, 10, 15 इस तरह से। और उससे पहले आप देखें हज़रत शेख फरमाते हैं खुद ही, मुझे बहुत ज़्यादा झिझक महसूस होता था क्योंकि मैं एक अजमी था और जो लोग अरबी हैं उनके सामने खिताब करना, उनके सामने बोलना, ये तो बहुत बड़ी जुर्रत की बात है। पता नहीं मेरी अरबी इतनी अच्छी है भी कि नहीं, उनके सामने कैसे बोलूं। तो ख्वाब में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते हैं और 7 मरतबा अपना लुहाब दहन आपके मुंह में डालते हैं और कहते हैं, ए अब्दुल कादिर तुम खिताब क्यों नहीं करते हो, अब से तुम खिताब किया करो। फिर हज़रत अली भी ख्वाब में आते हैं और 6 मरतबा आपके मुँह में लुहाब दहन डालते हैं। तो इस तरीके से जब आप ख्वाब से उठते हैं और फिर खिताब करने के लिए बैठते हैं तो मजमा आम हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके मजलिस में आते हैं और आपसे इक्तिसाब फैज़ करते हैं। तो आपके एक एक मजलिस के बारे में आता है कि 70,000 लोग आपकी मजलिस में आया करते थे और किसी तक आवाज़ कम नहीं पहुंचती थी, सब तक बराबर आवाज़ पहुंचती थी। ये एक आपकी बहुत बड़ी करामत थी कि किसी तक कम या ज़्यादा आवाज़ नहीं पहुंचती थी। आज के ज़माने में तो माइक्रोफोन हो गया है, डीजे हो गया है, आदमी जिस तरह से चाहे लगा ले तो आवाज़ पहुंचती रहे, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था, बल्कि आपकी आवाज़ सब तक बराबर पहुंचती थी। और अल्लाह ताला ने आपकी ज़बान में वो तासीर रखी थी। बड़े बड़े अरबी लोग जब आपके खुतबा को सुनते थे तो हैरान रह जाते थे, अंगुश्त बदंदा हो जाते थे। अल्लाह ताला ने आपने वो रियाज़ात और मुजाहिदा किया। अल्लाह ताला का वली बनना इतना आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, अगर कोशिश करेंगे तो मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये है कि जो अल्लाह का वली होता है, अल्लाह तक पहुँचने की सबसे पहली सीढ़ी सच है। अगर कोई सच नहीं बोलता है और सारी इबादतें कर डालता है, अल्लाह का वली कभी नहीं बन पाएगा। और अगर सच बोलना शुरू कर देता है, उसके अंदर और भी कई कमी है, कई बुराई है, लेकिन वो सच बोलना शुरू करता है तो याद रखे कि वो यकीनन एक ना एक दिन सच ही पर कायम हो जाएगा। अल्लाह ताला के तौफीक से वो सारी बुराइयों को छोड़ देगा और वो सच्चा पक्का बन जाएगा। तो हमें बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी से कई चीज़ें सीखने को मिली। सबसे पहले तो हमें इल्म हासिल करना चाहिए, इल्म के बगैर कोई चारा नहीं। दूसरा ये है कि हमें सच का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तीसरा ये है कि इल्म हासिल करने के बाद हमें किसी मुर्शिद की तलाश करनी चाहिए। मन ला शेख लहू फ़हुवा शैतान, जिसका कोई शेख नहीं है, जिसका कोई मुरब्बी नहीं है, जिसका कोई मुर्शिद नहीं है, तो उसका शैतान जो है मुर्शिद बन जाता है। तो चौथी चीज़ क्या है कि हमें किसी मुर्शिद कामिल की ज़रूरत है इल्म हासिल करने के बाद। और फिर अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। अगर ये 5 चीज़ें हमारे अंदर हैं, ये 5 चीज़ें हमने अगर अपने अंदर पैदा कर ली तो याद रखें कि हम
अल्लाह के तौफीक से अल्लाह का वली बन सकते हैं। अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दिया, अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई, बगैर अल्लाह ताला के लुत्फ़ व करम के कोई अल्लाह का वली नहीं बन सकता है। अगर अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई, अल्लाह ताला का करम हुआ, तो फिर यकीनन ऐसे लोग अल्लाह का वली बन जाएंगे जिनके अंदर ये 5 क्वालिटी होगी। नंबर 1, वो इल्म हासिल करे सबसे पहले। नंबर 2, सच को अपना ओढ़ना बिछोना बना ले, कभी झूठ ना बोले। नंबर 3, इल्म हासिल करने के बाद अल्लाह ताला एक मुर्शिद कामिल की तलाश में लग जाए, रियाज़ात और मुजाहिदात करे बहुत ज़्यादा, और इस्तिकामत इख्तियार करे इन चारों चीज़ों पर। अगर ये 5 चीज़ें किसी बंदे के अंदर आ जाती है तो याद रखें कि अल्लाह ताला के तौफीक से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अल्लाह ताला के लुत्फ़ व करम से वो अल्लाह का वली बन सकता है। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम गहराई और गिराई से आपकी ज़ात का मुताला करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। लेकिन ये है कि ये बहुत ही अहम और मालूमाती चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सिर्फ जलसा जुलूस कर लिया, कॉन्फ्रेंस कर लिया, 11 दिन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर जलसा मुनाकिद कर लिया तो बस बरी ज़िम्मा हो गया। यही हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है कि हम जलसा जुलूस तो कर लेते हैं, लेकिन आपकी सीरत, आपके अखलाक, आपकी तालीमात से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी अखलाक, आपकी तालीमात, आपकी सीरत को सबसे पहले हमें अपनाना चाहिए, उसके बाद किसी चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तभी तो हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, वरना तो सिवाय नाकामी के हमें कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दस्तबदुआ हूँ, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सच्चे और पक्के मुसलमान बने और हज़रत सैयदना शेख बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात, उनकी सीरत और उनके अखलाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।